Hi guys, this is Kriti Bhatnagar from Rodha Clare, and today we're going to be talking about a very important bill that has been introduced in the monsoon session this particular year, so in the parliament. So definitely this is something we have to talk about. What is a tribunal? How does a tribunal work? How is it different from a court? And what did the bill talk about? Why did it become controversial? Everything we're going to be talking in today's class. This is Kriti Bhatnagar, your legal reasoning educator. I have done my BLLB from LI Bhopal and Masters from JNU Gujarat. I have also cleared UGC NET and my client rank was 339, and now we are going to be talking about the bill. So firstly, let's understand what is a tribunal and how is a tribunal different from court. So see, we already have regular courts. Okay, what is the actual method of, so traditional method of dispute resolution? If you look at our country, what is the traditional method of resolving disputes? How do we resolve the disputes? So the traditional method of dispute resolution is via courts. If you have any kind of issue, you go to the court and then you get your case solved, and then you just you're out of the court. But courts are very, very technical in the sense that they follow what is written in the law very, very they don't deviate from it at all. If in the evidence law something is written, it will be followed as it is by the court. So they are very traditional with respect to their approach. Sometimes if you look at court take 5 years, 10 years, 15 years to solve a case. So because of that, we have a lot of pendency of cases. If you look at Supreme Court in itself has 90,000 cases pending already. In the month of January, it had 90,000 cases pending this particular year. जो लोअर जुडिशरी में तो और भी ज़्यादा केसेस हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो आप फिर भी अपील से जाते हो, कुछ ही केसेस जाते हैं. तो लोअर जुडिशरी हैज़ मच मोर लैक्स ऑफ केसेस पेंडिंग इन द कोर्ट. So it was realized long back that courts are not enough to solve cases, and there are certain issues with courts. One is that time period that it takes to decide a case. And why is the time period an issue? Because they have to stick by law. अगर एविडेंस एक्ट में लिखा है कि इतना 90 डेज देना पड़ेगा, 6 मंथ्स देना पड़ेगा, एटसेट्रा, तो उस सब में टाइम निकल जाता है, और फिर वो तारीख पे तारीख दे सकते हैं, है ना, नेक्स्ट डेट दे सकते हैं. तो ये सब कुछ इश्यूज हैं टाइम पीरियड को लेके. सेकेंडली, इट वॉज रियलाइज दैट इट गोज बाय द बुक वेरी, वेरी रिजिडली. दैट अगर कुछ चीज़ एविडेंस लॉ में दे रखी है, कुछ चीज़ प्रोसीजरल लॉ में दे रखी है, तो एज इट इज फॉलो होनी चाहिए. थर्ड प्रॉब्लम दैट वॉज रियलाइज्ड वाज दैट we don't have anybody who's expert of that particular case that has been filed in the court of law. है ना, जो सिविल कोर्ट्स होते हैं वहां पे आप जनरल केसेस फाइल कर सकते हो. कोई भी केस जो सिविल लॉ से रिलेट करता है आप वो फाइल कर सकते हो. देयर इज नो स्पेशलाइजेशन. नॉर्मल कोर्ट्स में कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता कि ये वाले जो जज हैं ये सिर्फ और सिर्फ आईपीआर के केसेस देखेंगे, ये वाले जो जज हैं ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्चुअल केसेस देखेंगे, ये वाले जो जज हैं ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी केसेस देखेंगे. देयर इज नो स्पेशलाइजेशन. हर तरीके का केस इस पर्टिकुलर कोर्ट में आ जाता है. तो जैसे आप अगर बात करो, हॉस्पिटल्स होते हैं ना, कुछ हॉस्पिटल होते हैं जनरल हॉस्पिटल होते हैं, कुछ होते हैं स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल, कि भाई यहाँ पे आप जो है सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्चर रिलेटेड इश्यूज ही आते हैं. तो ऑब्वियसली उन पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स की जहाँ पे स्पेशलाइज्ड केसेस आते हैं, जिन लोगों को दिक्कत होती है उस चीज़ की, वो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल जाना प्रेफर करेंगे रादर देन जनरल हॉस्पिटल, की भाई जनरल हॉस्पिटल में तो सारे ही केसेस आते हैं, तो वो स्पेशलाइज्ड इंसान नहीं मिलेगा. सो इसलिए ट्रिब्यूनल लाया गया. ट्रिब्यूनल इज नॉट अ रिप्लेसमेंट टू कोर्ट. ऑब्वियसली कोर्ट भी एग्जिस्ट करते हैं, it is an addition to court. Tribunal basically wanted to solve the problem जो भी court related आ रही है. तो in the case of tribunal specialized administrative bodies होती हैं. तो ट्रिब्यूनल कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी. नाउ व्हाट इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी? जुडिशियल बॉडी क्या होती है? जो एक्चुअल पूरी तरीके से जुडिशरी को बिलोंग करती हो. जैसे आपका हाई कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया. बट ट्रिब्यूनल क्या कर रहा है? ट्रिब्यूनल ऑल्सो गिव्स डिसीजंस. ट्रिब्यूनल में भी एक पार्टी केस फाइल करती है अगेंस्ट अनदर पार्टी, एंड देन देयर इज अ चेयरपर्सन हु गिव्स द डिसीजन. तो जैसे जुडिशरी में जज होते हैं, ट्रिब्यूनल में चेयरपर्सन होते हैं. Chairperson then gives the decision in favor of one party or against one party which is binding upon the parties. तो क्योंकि वो जुडिशरी की तरह फंक्शन कर रही है, बाइंडिंग डिसीजन दे रही है पार्टी के ऊपर, एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर केस कर रही है, देयरफॉर हम उसको जुडिशियल तो नहीं बोल सके क्योंकि ट्रूली जुडिशियल नहीं है, ट्रूली कोर्ट नहीं है, तो वी कॉल इट अ क्वासी जुडिशियल बॉडी. नाउ ट्रिब्यूनल आर स्पेशलाइज्ड. स्पेसिफिकली कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स के लिए एस्टैब्लिश किया जाता है. जैसे अगर आपने नाम सुना होगा एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एक ऐसा ट्रिब्यूनल है
जो सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट रिलेटेड केसेस को ही सुनता है। तो इन द एनजीटी ऑल्सो देयर इज अ चेयरपर्सन एंड देन द चेयरपर्सन हियर्स द केस। चेयरपर्सन के साथ और भी मेंबर्स हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक ही इंसान केस डिसाइड करता है। देयर आर जुडिशियल मेंबर्स, फॉर्मर जजेस होते हैं, लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं, और उसमें टेक्निकल मेंबर्स भी हो सकते हैं जो केस को सुनेंगे और फिर चेयरपर्सन को एडवाइस कर सकते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो देयरफॉर इट इज मोर स्पेशलाइज्ड, कि जो लोग हैं वो जरूरी नहीं है सिर्फ लीगल बैकग्राउंड से आते हो। जैसे एनजीटी में हो सकता है टेक्निकल मेंबर्स ऐसे बैठते हैं जो एनवायरनमेंट को ऑन ग्राउंड समझ के आए हैं, वो कुछ एनवायरमेंटल एक्सपर्ट हैं, है ना, तो वो गाइड कर सकते हैं टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू स्पेसिफिक केसेस। जैसे वी ऑल्सो हैव एनसीएलटी, स्पेशली कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, कंपनी लॉ के केसेस देखता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस देखते हैं। लेकिन ऑब्वियसली बिकॉज इट्स नॉट अ कोर्ट, तो उस पर कोर्ट वाले एविडेंस के लॉ वगैरह नहीं लगते। लेकिन कुछ तो रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि ट्रिब्यूनल अपनी मर्जी से डिसीजन दे रहा है क्योंकि उनको ये सही लग रहा है, उनको ये गलत लग रहा है। तो फॉर दैट वी फॉलो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। हर ट्रिब्यूनल की ये ड्यूटी है कि वो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करेंगे ही करेंगे। व्हाट आर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस? 3 प्रिंसिपल्स होते हैं जो मस्ट बी फॉलोड वेन एवर एनी जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी इज गिविंग आउट अ डिसीजन। 3 प्रिंसिपल क्या कहते हैं? पहला, हियर बोथ साइड्स, दोनों साइड को सुन के ही डिसीजन देना है। दूसरा, बायसनेस नहीं होनी चाहिए, भाई आपके चाचा ही आपका केस सुन रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड थर्ड, रीजन डिसीजन, जो भी डिसीजन ट्रिब्यूनल दे रहा है, कोर्ट दे रहा है, उसकी रीजनिंग होनी चाहिए, देयर मस्ट बी अ रीजन अटैच्ड टू इट। तो इफ वी टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्टिंक्शन, फर्स्ट इज जूरिसडिक्शन वाइज। रेगुलर कोर्ट में ब्रॉडली सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ जा सकता है। ट्रिब्यूनल स्पेशलाइज्ड होता है, डोमेन स्पेसिफिक होता है। कॉम्पोजिशन एक्सक्लूसिवली जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं। रेगुलर कोर्ट में आप एग्जाम देके बनते हो या 10 साल प्रैक्टिस करके बनते हो, तो एक्सक्लूसिवली जुडिशियल ऑफिसर्स। ट्रिब्यूनल में मिक्स होता है। प्रोसीजर गवर्न स्ट्रिक्टली होता है बाय सीपीसी, बाय बीएनएसएस, कि जो प्रोसीजरल लॉ है हमारी कंट्री का, उससे ही केस डिसाइड होगा। बट यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, सिंप्लीफाइड रूल्स होते हैं ट्रिब्यूनल में, और फोकस होता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, सारे लीगल मैटर्स रिलेटेड। और ट्रिब्यूनल सब्जेक्ट मैटर वाइज स्पेसिफिक होता है कि हम जो ट्रिब्यूनल है हम यही केस सुनेंगे। नाउ इफ वी टॉक अबाउट हाउ इज अ ट्रिब्यूनल सेटअप, so tribunal has been set up under this particular part of the Indian Constitution. There are 2 articles that have been set up to talk about tribunals. First is Article 323A. So Article 323A क्या कहता है? Empowers Parliament to establish administrative tribunal. तो सबसे पहले तो administrative tribunal की बात करता है पार्ट 14A में, आर्टिकल 323A, कि हमें एक ऐसा ट्रिब्यूनल सेटअप करना है जो एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस देखता हो। एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस मतलब यूपीएससी का एग्जाम कंडक्ट कराया गया, उसमें एक पर्सन का सिलेक्शन नहीं हुआ, इवन तो उसके बेटर मार्क्स थे, इस चीज़ से रिलेशन में कुछ भी डिस्प्यूट्स है, सर्विस कंडीशन है। मान लीजिए कि कोई पब्लिक सर्वेंट है, उसकी सर्विस कंडीशन इज नॉट एट पार विद अनदर एम्प्लॉय, इवन तो वो दोनों सेम ग्रेड पे हैं। तो यहाँ पे अब देखो, ऐसा केस नॉर्मल कोर्ट जाएगा, 10 साल लगाएगा, वो 10 साल तो बंदे ने अपनी जॉब लूज आउट करी ना, गवर्नमेंट जॉब लूज आउट करी ना, गलत बात है। तो इसलिए अलग से हमने कोर्ट स्पेशलाइज कर दिया कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जाइए अपने केस सॉल्व कराने के लिए। तो पार्लियामेंट कौन सेटअप कर सकता है ट्रिब्यूनल? पार्लियामेंट सेटअप करती है। देखो, कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन से सेटअप होता है और आपका हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन से सेटअप होता है। ट्रिब्यूनल जो है वो पार्लियामेंट लॉ बना के सेटअप करती है। ट्रिब्यूनल्स आर सेटअप बाय द पार्लियामेंट इटसेल्फ, बाय लॉ। आर्टिकल 323B ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी पावर है कि वो ट्रिब्यूनल सेटअप कर सकते हैं फॉर स्पेसिफिक मैटर्स, जैसे कि टैक्सेशन, फॉरेन एक्सचेंज, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, लैंड रिफॉर्म्स एंड कंज्यूमर राइट्स। आप सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलवेज सेड कि फॉर ट्रिब्यूनल सेटअप एंड गिव्स अ डिसीजन, इट कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। उसका डिसीजन आप फाइनली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। Now, why was this law introduced? तो अलग अलग लेजिस्लेशन लेके आई पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट को पावर था कि वो ट्रिब्यूनल सेटअप कर सकती है, जैसे कि फाइनेंस एक्ट 2017, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021, और उसके बाद भी कुछ कुछ रिफॉर्म्स एक्ट लेके आई। और बेसिकली गवर्नमेंट रियलाइज्ड कि कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं ट्रिब्यूनल में, हमको वो सॉल्व करना है। पहला उनका ये कहना था, पहला जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना ट्रिब्यूनल का, ट्रिब्यूनल कौन सेटअप कर रहा है? पार्लियामेंट सेटअप कर रहा है। और ट्रिब्यूनल में मेंबर्स बैठ रहे हैं और उनके सामने केसेस कौन लेके आ रही है? गवर्नमेंट ही लेके आ रही है। जैसे एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, पार्लियामेंट ने लॉ बना के सेटअप किया है। अब
मान लो गवर्नमेंट ने कल को डिसाइड किया कि हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए, तो पब्लिक किसके अगेंस्ट केस करेगी? गवर्नमेंट के अगेंस्ट करेगी कि आप क्यों डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो, इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और मतलब और फॉरेस्टेशन साथ में चलना चाहिए। पर दूसरी पार्टी जिस पे केस करोगे वो कौन होगी? गवर्नमेंट होगी। गवर्नमेंट ने ही ट्रिब्यूनल को सेटअप किया है, तो वाई विल दे गिव डिसीजन इन माई फेवर, इन द सिटीजन्स फेवर, है ना? तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई देखो, जो प्राइमरी लिटिगेंट होता है ट्रिब्यूनल केसेस में, विच इज द गवर्नमेंट, वो ही अपॉइंटमेंट्स करते हैं, सैलरी देते हैं, टेन्योर डिसाइड करते हैं चेयरपर्सन का या जुडिशियल मेंबर्स का या टेक्निकल मेंबर्स का, तो वो हमारे हित में फेवर क्यों देंगे? वो थोड़े बायस्ड हो जाएंगे। सेकेंड, क्रॉनिक वैकेंसीज एंड डिले, ये रियलाइज किया गया कि भाई ट्रिब्यूनल्स में नए मेंबर्स को हम अपॉइंट ही नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिले हो रही है, जिसकी वजह से मैसिव बैकलॉग्स क्रिएट हो रहे हैं। जिस पर्पस के लिए ट्रिब्यूनल सेटअप किया था वो ही कंप्लीट नहीं हो रहा। फ्रैगमेंटेड रूल्स, डिफरेंट ट्रिब्यूनल्स के डिफरेंट अपॉइंटमेंट प्रोसेसेस हैं, टर्म्स ऑफ सर्विस हैं। उसके अलावा शॉर्ट टेन्योर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो देखी गई कि अगर आप ट्रिब्यूनल में अपॉइंट होते हो तो आपको 3 या 4 साल के लिए अपॉइंट किया जा रहा था। तो लोगों का ये कहना था कि ये क्रिटिसाइजिंग पॉइंट है। क्यों? क्योंकि अगर मैं 3-4 साल के लिए अपॉइंटेड हूँ तो मैं गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजन दूंगी ना, कि गवर्नमेंट मुझे 3 साल बाद निकाल देगी और फिर से अपॉइंट नहीं करेगी, है ना? तो मतलब लोग to get in the good books of government may give decisions that are biased. Also guys, if any of you is preparing for CLAT, then we have launched this new course called as Sampoorn. In this batch you will get complete guidance for CLAT exam. You will get personalized mentorship with faculties at a very reasonable price. You will get this batch. So if any of you wish to enroll, then you are most welcome to. The description box has the link to this batch. नाउ कमिंग टू व्हाट इज द वॉर अबाउट, क्या वॉर हुआ भाई? तो सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्ट्रीमलाइन करने का सोचा कि चलो ठीक है, अब हम ट्रिब्यूनल्स के एक रूल्स बनाते हैं, अलग अलग रूल नहीं रखते। तो गवर्नमेंट फाइनेंस एक्ट लेके आई विद रिस्पेक्ट टू क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट और टेन्योर ट्रिब्यूनल मेंबर्स की। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये गलत रूल्स हैं। कोर्ट का ये कहना था कि भाई इससे तो आप बहुत ज्यादा पावर दे रहे हो एग्जीक्यूटिव को और जुडिशियल इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन कर रहे हो, क्योंकि इस ट्रिब्यूनल के सामने सबसे ज्यादा केसेस गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही होते हैं, और गवर्नमेंट ही सब कुछ अगर डिसाइड कर रही है तो फिर तो डेफिनेटली देयर विल बी बायस्ड डिसीजंस। फिर एक केस आता है मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब गवर्नमेंट ने फिर नए रूल्स बनाए, ट्रिब्यूनल, अपेलेट ट्रिब्यूनल एंड अदर अथॉरिटीज रूल्स 2020, इनको भी चैलेंज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में कुछ बाइंडिंग डायरेक्शंस इशू किए कि ये तो गवर्नमेंट को फॉलो करने पड़ेंगे। पहला उन्होंने ये बोला कि अब से मिनिमम 5 ईयर का टेन्योर होना चाहिए। सेकंड, उन्होंने बोला कि भाई देखो, अब हम एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी बनाएंगे कि हु विल बी द नेक्स्ट चेयरपर्सन मेंबर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल, उसको डिसाइड करने के लिए कमेटी बैठनी चाहिए, गवर्नमेंट का मेंबर नहीं होना चाहिए वो। ये कमेटी डिसाइड करेगी हु विल बी द नेक्स्ट person in the tribunal. Advocate eligibility, lawyers with 10 years of practice experience must be eligible for appointment as judicial members without any kind of age restriction, कि भाई एज रिस्ट्रिक्शन डाल दिया कि 70 साल के ऊपर के लोग ही ट्रिब्यूनल मेंबर बन सकते हैं, ये सब हटाना पड़ेगा। नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन, उसके अलावा सबसे ज्यादा जो मांग थी कोर्ट की, कोर्ट का ये कहना था कि गवर्नमेंट क्यों सब कुछ अपॉइंट करिए, गवर्नमेंट एक कमेटी अपॉइंट करे, वो कमेटी फिर डिसाइड करेगी हु विल बी द नेक्स्ट चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल। नाउ स्ट्राइकिंग डाउन ऑफ द एक्ट, फिर एक्ट को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021। और इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट हैड स्ट्रक डाउन सर्टेन प्रोविजंस कि 5 ईयर से 4 ईयर्स टेन्योर कर दिया था, 50 ईयर का कोई इंसान होगा तभी हम उसे ट्रिब्यूनल में अपॉइंट कर सकते हैं। ये सब कोर्ट ने बोला कि नहीं, हम ये सब अलाउ नहीं करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द स्पेसिफिक सेक्शंस ऑफ 2021 एक्ट। और कोर्ट ने ये बोला कि भाई देखो, पार्लियामेंट ऐसे लॉ बना के जुडिशियल डिक्लेरेशन के ऊपर नहीं जा सकती। जुडिशरी ने बाइंडिंग डायरेक्शंस दिए थे कि आप 5 साल का टेन्योर रखो, कमेटी बनाओ, नेशनल कमीशन सेटअप करो, आपने सब हटा के कुछ और ही बना दिया। ये अलाउड नहीं है, यू कांट गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट दैट वे, ठीक है। फिर तो जुडिशियल ओवर रूलिंग्स करी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 5 मैंडेटरी पिलर्स को एस्टैब्लिश किया। जुडिशियल सुप्रीमेसी होनी चाहिए कि भाई सीजेआई भी होने चाहिए इन द सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। फिर एलिमिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन, ये गवर्नमेंट सब कुछ डिसाइड करिए, है, टेन्योर वेन्योर ये सब खत्म करो। 5 साल का मिनिमम टेन्योर देना ही पड़ेगा आपको टू अ मेंबर ऑफ द ट्रिब्यूनल। फिर ट्रिब्यूनल्स हाई कोर्ट के ऊपर नहीं होंगे, हाई कोर्ट में उनकी अपील हो सकती है। और इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब से एक कमीशन सेटअप करो जो डिसाइड करेगी हु विल बी द नेक्स्ट पर्सन, क्या टेन्योर होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा।
तो ये लोग लेके आए, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल आया इस साल मॉनसून सेशन में 2026 में, ठीक है। उसमें क्या किया गया, इस्टेब्लिश किया गया नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन कि उसमें ये अपॉइंटमेंट्स होंगे, परफॉर्मेंस होंगी, कंप्लेंट्स होंगी, एडमिनिस्ट्रेशन होगा अक्रॉस 16 मेजर ट्रिब्यूनल्स। फिर इसमें एक चेयरपर्सन होंगे, जुडिशियल मेंबर्स होंगे, 2 फॉर्मर हाईकोर्ट चीफ जस्टिसेस और जजेस, और टेक्निकल मेंबर्स भी होंगे, ठीक है। उसके अलावा सुपरवाइजर्स कैंडिडेट सिलेक्शन, कैसे हम सिलेक्ट करेंगे ट्रिब्यूनल के मेंबर को, वो इस रिफॉर्म लॉ में लिख रखा है। डिसिप्लिनरी इंक्वायरीज के बारे में दे रखा है। नेशनल ट्रिब्यूनल डेटा ग्रिड को मैनेज करेगा। इसमें हम एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी को भी अपॉइंट करेंगे स्पेशलाइज्ड कमिटीज के थ्रू। सिंगल कैंडिडेट रूल, अब से अगर कोई वैकेंसी होगी ट्रिब्यूनल में तो एक ही नाम जाएगा, गवर्नमेंट को चॉइस नहीं मिलेगी कि हम बताएंगे कि कौन बनेगा 2 लोगों में से एक, नहीं, एक ही नाम जाएगा, उसी को बनाएंगे। और जुडिशियल चेयरपर्सन के पास कास्टिंग वोट रहेगा सिलेक्शन डिसीजन में। टाइमलाइन दी जाएगी कि भाई रिकमेंडेशन विद इन 3 days कर दो, और सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट प्रोसेस एंड कंफर्म अपॉइंटमेंट्स विद इन 3 months। तो जल्दी जल्दी होगा, ऐसा नहीं है कि भाई बैठे हो या वैकेंसी है और फिर अब केस नहीं हो पा रहे। टेन्योर एंड एज लिमिट्स, 5 year का टर्म होगा। अपर एज लिमिट चेयरमैन अप टू 70 years के हो सकते हैं, ट्रिब्यूनल मेंबर्स अप टू 70, फिर 67 years के हो सकते हैं। रिमूव द 50 और मिनिमम एज रिस्ट्रिक्शन, इसको हटा दिया है इन द बिल। और सेंट्रलाइज सेक्रेटेरिएट और सर्विस कमीशन, डेडिकेटेड सेक्रेटेरिएट बनाया जाएगा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो these are the reforms that have been brought forward by the Tribunal Reforms Law, and that is it. That was the bill that was discussed in the monsoon session, and I shall see you in another session. Thank you so much guys, take care. अगर कोई भी डाउट है डिस्क्रिप्शन आप कमेंट कर सकते हो, and I hope to see you in the classes. Bye guys.